Well friends, after learning pure resistive circuit, now let's start with the next topic where we will understand the behavior of an inductor. Right, we've understood when the sine wave is given to pure resistive circuit, how exactly current comes. How does it respond, we've understood, and now we're going to see when the same sine wave is given to pure inductive circuit, how will it respond. Fine, okay. So let's begin with this. We have given the same sine wave, the sinusoidal supply to pure inductive circuit, and inductor, we have inductor over here. So let's see inductor. This is the inductor that we have. I'm sorry, I'm not there in the video. Okay, this is the inductor that we have. This is written as it's DC choke. It is written. It's not choke, whatever. So this is DC choke. Choke is a choke coil. Fine, and that's basically an inductor. लिखा हुआ है, अंदर दिख रहा है कि नहीं, दिख लेना भाई. 18 एम्पियर 2 मिली हेनरी का इंडक्टर है ये. दिखा है कि नहीं दिखा है? दिख रहा है ना, अंदर दिख रहा है ना. ओके, सो वेरी नाइस इंडक्टर. तो ये जो इंडक्टर है उसको जब हम एसी सप्लाई देते हैं, अंदर क्या होता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, करंट कैसे आता है, उसके बारे में आज बात करनी है अपने को. दिल थाम के बैठिए और इसका मजा लूटिए. तो गाइस वी हैव गिवन, बेटा यहाँ पे है तो वहां पे नहीं देखना है. सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी. अपन को तो पता ही है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी. बेटा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस माने उसके दो टर्मिनल के बीच में है ना. सो वी कैन say that अभी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कौन सा है, Vm sin omega t है कि नहीं, Vm sin omega t है कि नहीं. So we can say that VL is nothing but Vm sin omega t only, which is nothing but L di by dt. कोई डाउट इसके अंदर? Voltage across inductor is given by L di by dt, but right now the voltage across inductor is nothing but Vm sin omega t. So we can say that Vm sin omega t is equal to L di by dt. I am interested to calculate current. Fine, voltage equation we have to find, and now we are supposed to deal with current equation. Voltage equation is this, and now let us deal with current equation. Current equation बगा सका के derive करने के लिए we will formulate di को formulate किया तो dt हाँ में आवी गयो ने, L नीचे आवी गयो. So we can say that this is Vm. I just meant that dt यहाँ पे आ गया, L नीचे आ गया. So Vm divided by L. This is sin omega t into dt. Integrating both the sides, so we'll be having I, which is equal to all I ever wanted. So this is Vm divided by L. Sin omega t का integration होगा minus cos omega t upon omega, because we are doing this integration with respect to time, and here I have omega t. Fine. So okay, we've got Vm minus Vm divided by omega L. Oh my god, omega L is nothing but XL, inductive reactance. Yeah, so we'll be having this is cos omega t. So I can say that I have got a current equation which is equal to minus Vm by XL into cos omega t, which I say it is minus Im cos omega t. Is it clear? V is equal to Vm sin omega t. We've already drawn it. Now we are supposed to draw this minus Im cos omega t. Again, the same circle we have to remember. Cosine term we have to see, which is naturally our x component. So I'll draw it again, so it will be very easy for us to understand that thing. तो मैं x component लिख रहा हूँ 1 0 minus 1 0 और 1. Fine. So it's 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 and 2 pi. Is it clear? Fine. Okay. तो चलो minus Im cos omega t. 0 से चालू है. Cos 0 1 multiplied by minus Im. So I'll be having minus Im. पता चला कि नहीं पता चला? 0 के लिए पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? Okay. Let's talk about pi by 2. Cos pi by 2 is 0. 0 multiplied by 0. बराबर pi. Cos pi is minus 1. Minus 1 multiplied by minus Im plus Im. Okay. Cos 3 pi by 2 0. 0 multiplied by minus Im 0. And cos 2 pi, which is equal to 1. 1 multiplied by minus Im is minus Im. So we got current's equation, current's waveform. I'm sorry. Current's waveform is like this. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Fine. अभी देख बदला ना. पहले की कंपैरिजन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ है? पहले तो हम साथ साथ थे, अभी नहीं है. फाइन, अभी नहीं है तो अभी कैसे है? अलग अलग आए है एक दूसरे से 90 डिग्री
फेज डिस्प्लेसमेंट में है. कैसे? लेट्स सी. ऊपर वाली साइड वोल्टेज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. वोल्टेज शुरू होकर जब मैक्सिमम बनता है तभी उसी साइड पे करंट जस्ट चालू होता है. पीले पीले पानी पीले. डन. देख वापस एक बार तेरे लिए. वोल्टेज जीरो से साला मैक्सिमम हो गया तब जाके तो करंट उसी डायरेक्शन में चालू हुआ. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? सो करंट बाद में आया. करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज by 90 degree. Can you understand that? So we can see that here from the waveform we can see that current lags behind voltage by 90 degree. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Clear? Okay. Now once I've got this thing, I can definitely talk about phasor. Fine. जैसे कि अगर ये voltage है तो करंट एग्जैक्टली 90 डिग्री बाद वहां पे आएगा बगासा खा के. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. क्लियर हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? सो वी कैन से दैट ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के पीछे पीछे ऐसे जा रहा है ना. वो ऑलवेज 90 डिग्री मेंटेन के पीछे ही रहा. करंट पीछे ही रहा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह क्लियर हो रहा है. और दोनों साथ में गोल गोल रानी कर रहे हैं. डन. ओके. गोल गोल रानी साथ में कर रहे हैं पर फेज डिस्प्लेसमेंट है भाई. 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है वोल्टेज और करंट के बीच में. ठीक है. फाइन. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके. सो वी कैन से दैट द करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पावर फैक्टर, ब्लडी पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर के लिए हम लोग ऐसा बोलेंगे, इट इज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज एंड करंट के बीच में कितना एंगल है? cos 90 which comes out to be 0. बराबर. फाइन. जनरली अगर ऐसा पूछे व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट तो तू साला लिख के आएगा 0 और तेरे को मिलेगा 0. बराबर. इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर. सर आया तो सही. वाई इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर? यू कांट राइट 0. इसके नेक्स्ट थियरी में बताएगा कि क्यों ऐसा नहीं लिख सकते. बराबर. क्योंकि उसके लिए मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा कैपेसिटर के साथ. ठीक है. फाइन. तो वहां पे बताएगा कि आंसर क्या लिखना है. 0 करके कुछ लिखना पड़ता है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई विल टेल यू. बगासा खा के बेटा. फाइन. जबरा बगा मिस्टर बगासा का अवार्ड आज तेरे को जाने वाला है. तेरी कंपटीशन में ये है. फाइन. और मिस बगासा तो यू नो दैट राइट. ठीक है. चलो. सो वी हैव गॉट दिस थिंग. नाउ pure inductive circuit, write V and I equations, done. Draw waveforms, done. And phasors, done. Comment on the power factor, done. Partly done. Find average power. So average power के लिए सबसे पहले instantaneous power हम लोग calculate करते हैं. So we can say that instantaneous power is instantaneous voltage into instantaneous current. बेटा देख ले बोर्ड पे तू आके डल सीख ले. चल पढ़ना है एक बार याद रख. V is equal to Vm sin omega t. इंटरनल से पहले बेटा सीख ले. सो इट इज माइनस Im cos omega t. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ठीक है. सो वी हैव गॉट Vm नेगेटिव Im sin omega t cos omega t. अपने है ना सेटिंग करते वो वाला 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो अपना वो sin 2 omega t वाला सेटिंग हो गया ना. sin omega t cos omega t. So we can say that is equal to minus Vm Im by 2. ये पता चला ना 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड किया अपना इक्वेशन बन गया भाई. दैट इज sin 2 ओमेगा टी. इंस्टेंटेनियस पावर मिल गया. इंस्टेंटेनियस पावर मिल गया. अभी क्या करना है इसको ड्रॉ करना है. क्या करना है इसको ड्रॉ करना है. ड्रॉ करते हैं. आई टोल्ड यू दैट अल्टीमेटली इट इज पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लीकेशन ऑन वोल्टेज ऑन करंट. इट इज अल्टीमेटली पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट. क्या जब्बर सो रहा था वो. he proved it. फाइन. सर सो नहीं रहा था ये देख रहा था. साले यहां देखना पर मेरे को देख बोर्ड पे देख. इतना अच्छा चीज चल रहा है बोर्ड पे तो फिर कमाल है. अभी क्या देख रहा था? किस में जा रहा था तू? क्लासमेट में जा रहा था. ये भगवान. अच्छा वो यूएस से जा रहा था. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है. यूनिटी पे जा पहले. जाके आया. वेरी गुड. अभी दैट डजंट मीन कि क्लास में तू वहां पे जाए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे. हैं? कमाल है. चलो हेत बेटा. नो टचिंग ओनली सीन. ठीक है. चलो. सो minus Vm Im by 2 sin 2 omega t we have got over here and I am supposed to draw that
Can you understand one thing over here, that my voltage and current both are of omega t, whereas my power is of 2 omega t. So whatever frequency I have over here, the double frequency comes over here. 2 ओमेगा हो गया, यहाँ पे ओमेगा का फ्रीक्वेंसी था अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का था, बराबर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी था, फाइन 50 हर्ट्ज का ये साला 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हो गया, बराबर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? ओके, सो ultimately if I want to draw that, I mean I can literally put all the values of angles over here, and we can say that when I'll put 45 degree, it will give you the maximum value. If I'll put 45 degree, 45 multiplied by 2, it's 90. Sin 90 becomes maximum, right? Okay, so for 45, any 45, I'll be having maximum value over there. Fine, okay, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? So now let's do point to point multiplication. It's like maximum multiplied by 0. Naturally it will be 0. अभी देख 45 पे क्या हो रहा था, वो मैक्सिमम हो रहा था. I have told you, when I put pi by 4 over here, that basically becomes pi by 2. Fine, when I put pi by 4, that is this point, so sine 2 times pi by 4 becomes sine pi by 2. Sine pi by 2 is 1, and that time you'll be having minus Vm Im by 2. So at that time you'll be having minus Vm Im by 2. So this is Vm Im by 2. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ? ओके, बाद में pi by 2 रख. So sine 2 times pi by 2, 2 cancel, sine pi 0. So here as such, see, current is 0, voltage is maximum, multiplication is 0. Clear? So you can understand, जब भी 45 वाला कुछ तो आएगा ना बीच वाला, तब वो मैक्सिमम हो जाएगा. तो we can say that, देख ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन विल बिकम नेगेटिव. तो वी हैव गॉट 1 नेगेटिव. पता चला कि नहीं पता चला? ठीक है, चल दोनों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन विल बिकम पॉजिटिव. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फाइन, पॉजिटिव नेगेटिव वापस नेगेटिव. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? नेगेटिव वापस पॉजिटिव. क्लियर? सो यू कैन से दैट जब मेरा वोल्टेज का एक साइकिल खत्म होता है या तो करंट का एक साइकिल खत्म होता है, पावर के 2 साइकिल्स खत्म हो जाते हैं. फाइन, ओके, पता चला कि नहीं पता चला? सो माई पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज ऑसिलेटरी. आता है जाता है, आता है जाता है. प्लीज, so we can say that the power over here is oscillatory. oscillate हो रहा है पावर अपना. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो वी कैन से दैट पावर गया आया. ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है पता है? गया आया मतलब सप्लाई में गया, सप्लाई में से आया, सप्लाई में गया, सप्लाई में से आया. पता चला? सो तू पावर को ले रहा है, पावर को भेज रहा है, पावर को ले रहा है, पावर को भेज रहा है. प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कैसा था वो चीज? पावर ऐसा था कि नहीं था? बस तू ले रहा है. समझ पड़ा? तो वो नेट पावर तू खा रहा है, यहाँ पे तो ले रहा है, दे रहा है. जितना ले रहा है उतना ही दे रहा है, जितना ही ले रहा है उतना ही दे रहा है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? एवरेज पावर यू कैन सी दैट. एवरेज कितना होगा 2 पाई पे? 0. Let's prove that. So we can say that P average, which is equal to 1 upon 2 pi integration 0 से 2 pi तक. Do you understand this formula? Addition of observation divided by number of observations. So we can say that 0 to 2 pi it is minus Vm Im by 2 sine of 2 omega t into d omega t. Here you have to take this particular axis. Fine. Why I have not taken it over here? Just because I know voltage across inductor is di by dt. So naturally I'll be doing things with respect to t. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Whereas for finding average, I have to take that particular axis. Clear? Fine. So we have got P average, which is equal to 1 upon 2 pi integration 0 to 2 pi. The entire function I have kept over here. Vm Im by 2 will come outside. So I'll be having minus Vm Im by 4 pi integration of sine 2 omega t is equal to minus cos 2 omega t divided by 2 running from 0 से 2 pi. Clear हुआ कि नहीं हुआ? अभी देख, माइनस बाहर निकल गया, प्लस हो गया, 2 बाहर निकल गया, 8 हो गया. तो विल बी हैविंग एवरेज पावर विच इज इक्वल टू Vm Im by 8 pi. Now this becomes cos 4 pi minus cos 0. Do you understand? Cos 4 pi minus cos 0. So it is Vm Im by 8 pi. Cos 4 pi का वैल्यू 1 minus cos 0 का वैल्यू 1. 1 minus 1 0. Average power is 0. Hence proved. समझ पड़ा? सी दिस इज ऑल्सो 7 मार्क्स थियरी. 3 थियरी है, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव. 7 मार्क्स में कोई एक थियरी आने का बहुत चांस होता है, ठीक है, जिसमें इतना डिराइव करना होता है. क्लियर हुआ? फाइन. दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम गाइस. इफ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर इस इंडक्टर को
इस इंडक्टर को इफ आई कनेक्ट टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज का, पावर इसके अंदर जो जाएगा वो ऐसे आएगा, बराबर, मतलब नेट पावर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, एंड स्टिल आई विल बी पेइंग द बिल्स। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो दिस इज नॉट अ एक्टिव कंपोनेंट, दिस इज अ रिएक्टिव कंपोनेंट। फाइन, जो पावर इंस्टेंटली खाता है पर एवरेज पावर नहीं खाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉसलेस कंपोनेंट। इसको लॉसलेस कंपोनेंट भी बोलते हैं। पता चला कि नहीं पता चला? पावर खाता है इंस्टेंटली, at any given instant it is eating some amount of power, but average power eaten by that inductor is always equal to 0. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Clear? So that power is called as reactive power. इसको क्या बोलते हैं? Reactive power. जो रेजिस्टर में हमने पावर के कैलकुलेशंस किए थे, वो पावर is called as active power. It is actually converted into heat. समझ पड़ा कि नहीं? Active power. ठीक है, तो सर इसमें भी सप्लाई दिया तो ये गर्म हो जाता है ना? बेटा वो अगर गर्म होता है तो इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इनटू इट। सर ऐसे कैसे? मैंने यहां पे इसीलिए प्योर इंडक्टिव बोला। प्योर इंडक्टर इज नॉट पॉसिबल। सर काहे को नहीं पॉसिबल? प्योर इंडक्टर क्या होता है? ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल लो, उस पे वाइंडिंग करो, इट इज गोइंग टू बिकम एन इंडक्टर। फाइन, पता चला कि नहीं पता चला? दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल जिसके सेंटर पे एक लिम्ब है, उस पे हमने मस्त वाइंडिंग किया हुआ है। वाइंडिंग होता है किसका? कॉपर का। कॉपर 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 इज कंडक्टर। कंडक्टर लंबा होता है, काटो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखता है। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, मतलब इसके अंदर भी इसका खुद तो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो नहीं होना चाहिए। समझ पड़ा? Fine. So you basically cannot make any pure inductor. You try to improve the quality of an inductor. That's it. And that's where that quality factor that you people have studied in 12th came into existence. What is the amount of resistance present into inductive reactance? Q factor का formula ऐसा था, which is omega L divided by R, if you recollect. Fine. पता चला? If it is क्वालिटी हाई होने के लिए आर कम होना चाहिए, तो इंडक्टर का क्वालिटी अच्छा होने के लिए उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट शुड बी वेरी स्मॉल। डू यू अंडरस्टैंड दैट? फाइन, ओके, डन। कोई डाउट इसके अंदर? लिखो।